We're delighted to welcome you to the 14th Jaipur Literature Festival protected by Dettol. We come to you from the Darbar Hall of Diggi Palace, Jaipur. Today's session is supported by the Department of Art and Culture, Government of Rajasthan. It's our pleasure to present Gulabo Sapera and the Dance of the Serpents, Gulabo Sapera in conversation with Tripti Pandey. The irrepressible Gulabo Sapera has given new life and impetus to the age-old traditions of the Kalbelia tribe. Born in Ajmer, Rajasthan, as the seventh child of her parents, she was buried alive after her birth due to community pressure, but was rescued and survived the ordeal. She went on to evolve her own individual style and school of dancing based on the Kalbelia form and received global fame and recognition. She shares the incredible story of her life journey, her inspirations and learnings with cultural icon and mentor Tripti Pandey. Pandey is a well-known name in the field of tourism and culture and travel writing. She's done pioneering work around multiple folk art and craft festivals, along with a special interest in helping traditional performers. An unforgettable conversation between Gulabo and Tripti Pandey on the joyous wellsprings of dance and creativity, as well on the harsh lessons of survival in a patriarchal society. Gulabo Sapera, a legendary folk artist, not only conceptualized and choreographed the flamboyant dance style Kalbelia, but also got her nomadic community a never-imagined recognition. Today, the dance form is one of the major features of the state of Rajasthan. Having faced numerous ups and downs, both personally and professionally, she is now visiting faculty at institutions in countries such as Denmark and France. She wishes to set up a dance school in Pushkar for her community. In 2011, Sapera featured in reality television show Bigg Boss 5. She is a recipient of the Padma Shri Award and the Maharana Mewar Award. Tripti Pandey is often termed as Rajasthan's cultural ambassador and has been a pioneer in researching and presenting living heritage. With her innovative approach and passion for living heritage, she set many milestones creating international festivals like the Desert Festival Jaisalmer, research collection and exhibitions on the coverings for women titled Through the Veil, as well as the books Where Silence Sings, Rajasthan Silver Jewelry, Pushkar, Colors of the Indian Mystique by Variety Books, and India's Elephants, A Cultural Legacy, which was awarded as the best book in the category of art coffee table books. Currently, she is the president of Surnai Sansthan, a society for living heritage, art and culture. Please do remember to comment by typing it into the comment section. Ladies and gentlemen, it's our pleasure to present Gulabo Sapera and the Dance of the Serpents. Gulabo Sapera in conversation with Tripti Pandey. गुलाबी कुछ याद है? एक टीला था जी वैसे वो तो कैसे भूल सकती हूँ मैं। पुष्कर का मेला था जी। एक छोटी लड़की डांस कर रही थी और वहाँ पे दो दूसरे लोग आए जी जी जो कि कालबेलिया समाज से नहीं थे। हाँ। और बहुत सारे गांव वाले थे, कुछ पैसे उछाल रहे थे। कुछ याद आया? अच्छी तरह मेरे को याद आया भी नहीं, वैसा वो हमेशा याद रहता है। और वही चीज़ है मेरी ज़िंदगी जो एक जिसको कहते हैं ना कि लाइफ दाता कैसे मिलते हैं, जन्मदाता तो होते ही हैं, उसके बाद जो लाइफ दाता मिलते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं कि इस तरीके से मेरे लिए भगवान बन के आया कि लोग मेरे को कोई 2 पैसा, कोई 1 पैसा, 3 पैसे फेंक रहे हैं और नाच रहे हैं हम मस्ती से औरतों के साथ में। वो जो औरतें होती मेरे को छुप छुपा के नचाती थी, पता है आपको, कि अपन चलते हैं और काजल लाली लेके दे देंगे तेरे को और बिंदी ले लेंगे और किसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे समाज में अलाउ नहीं है डांस करना और बाहर निकलना औरतों को। पहली बार तो लड़कियों को बचाते ही नहीं है, बहुत कम बचती है लड़कियाँ। तो इस तरीके से हम नाच रहे थे और हमारे लाइफ दाता आए जो है
जो मैं कभी नाम नहीं लेती, लेकिन मुझे आज नाम लेना पड़ेगा कि हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे जी आए हैं और वो देखते रहे, फ़ोटो खींचते रहे और जब मेरे हाथ लगाया कि भाई तेरे बदन में हड्डियां है या नहीं, तो मैं बोली नहीं कुछ भी, क्योंकि मेरे को तो शर्म आ रही थी। ये मैंने देखा कि जो मैं सपने में देखती थी और मैं पापा को हमेशा कहती थी कि मेरे पापा एक लंबे लंबे बाल, इतने गोरे, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद जैसा, इतने सुंदर आती हैं। मेरे पापा कहते परी आती हैं, तो वो मैंने देखा, मेरे को वो तो मेरी परी मैम आ गई हैं। और मैं तो आपको देखती रही, आप मेरे से बात करते रहे, लेकिन मेरे को कुछ भी ध्यान नहीं, बस मैं तो मेरे सपने में चली गई। फिर आपने मेरे उन चाचे से औरतों से बातें करी कि चलो शाम को आप प्रोग्राम करना। उन्होंने कहा भाई साहब प्रोग्राम तो जानते नहीं क्या होता है, कि जो यहाँ नाच रहे हो वैसे तुम वहाँ नाचना, और मैं आपको वहाँ बुला रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि बोला अपने को वहाँ शाम को चलना है। मैडम बुला के गई, जो फ़ोटो खींच रही थी अभी, वो जो तेरे को छू के देख रहे थे ना, हाथ लगा रही थी वो। मैंने कहा है? बोला हाँ। तो मैं तो फूल पे, मैंने कहा ऐसे खुश हो गई। मैंने कहा यार वहाँ भाई साहब के पास फिर से चल रहे हैं, और मुझे ये पता नहीं कि भाई साहब मेरे लाइफ दाता ही है कि मेरी ज़िंदगी बदल जानी है आज। तो बस फिर हम शाम को आए, और मेरे को वो भी याद है कि आपने मेरे को घुंघरू लेके दिए, रावण हत्ता वाले जो होते हैं उनसे मुझे घुंघरू लेके दिए कि ये पहन के डांस करेगी ना तो तेरे को रिदम मिलेगी और तेरे को और जोश आएगा। तो मैंने सोची ठीक है, पहली बार घुंघरू बांधे मैंने पाँव के और मैंने डांस किया, इतना अच्छा लगा। लेकिन वहाँ पैसे फेंक रहे थे, एक एक दो दो पैसा, और जब वहाँ स्टेज पे डांस किया तो इतना अच्छा लग रहा था कि वो स्टेज एक मंदिर है, पब्लिक एक मेरे लिए भगवान है, और इतना अच्छा लग रहा था। पर मैं सोची कि वहाँ तो पैसे मिल रहे हैं, यहाँ तालियां बजा रहे हैं लोग, ये क्या है। फिर मैंने आपकी बात याद आई कि देख तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, वहाँ सिर्फ तालियों का गिड़गिड़ाहट मिलेंगे। तो मैं संतुष्ट हो गई, मैंने कहा चलो ठीक है। नहीं, पर उसकी दूसरी बात जो मज़ेदार है जी। वो ये है कि तुझे तो हम कहे हाँ। आ जाना, अब ये था कि आएगी डांस करेगी, हम भी कुछ पैसे देंगे। सही सही। तो हम गए, एक बड़े आईएएस ऑफिसर थे जी। हमने उनसे कहा कि हमको एक आर्टिस्ट के लिए पैसे चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि सब पैसे तय हो चुके हैं, अब हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा सिर्फ 50 रुपये चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आर्टिस्ट कौन है? तो मैंने कहा कि मना जी ने बताया कि वो एक कालबेलिया लड़की है, टीलों पे नाच रही है। टीलों पे नाच रही है। तो उन सब ने हमसे ये कहा कि आप लोग टीले की लड़की को लेके आ रहे हैं, मतलब सड़क से उठा कर यहाँ स्टेज पे लेके आ रहे हैं डायरेक्ट। तो मैंने कहा कि वो सड़क स्ट्रीट डांसर नहीं है, वो सितारा है, सितारा। आपको लोगों को दिन में रात में सारे तारे नजर आ जाएंगे। तो इतनी मुश्किल से हमको वो 50 रुपए सैंक्शन हुए, पास कर दिए, जो हमने तुझको दिए शाम को थे। दिए। वो 50 रुपये आज तक है मेरे पास पैसा। मैं भगवान की जो भी पूजा करती हूँ वो 50 रुपये रखती हूँ। मेरे लिए वो 50 रुपये नहीं, वो आपका एक मतलब ऐसा वरदान था जिसकी कोई मोल नहीं है। उस 50 रुपये का कोई मोल नहीं, मेरे लिए अनमोल दौलत है वो। नहीं, हम लोगों के लिए, खुद के लिए, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। और हमने बचपन में सपेरे देखे थे, सांप नचाते लोगों को यहाँ देखा रामबाग था। होटल में यहाँ हाँ, देखा हाँ, था हाँ। आपने, लेकिन लड़कियों को नाचते हुए नहीं लड़कियों को देखा। नाचते नहीं देखा था। तो हम लोगों ने सपेरों से कहा जी। कि हमको आपकी लड़कियों को देखना है और लड़कियों को डांस करते हुए देखना है, कभी घर में तो करती होंगी। जी। तो किसी ने हाँ नहीं भरी, पर वो तो पुष्कर में मिलना था ना। जी, जी, ब्रह्मा जी की नगरी है, तो ब्रह्मा जी तो सबकी सृष्टि की रचना करता है। तो उन्होंने कहा कि आज की सबसे बड़ी रचना ये है। इसको लेकर जाओ तुम। तो मुझे एक बात और याद आ रही है, यहाँ पे ना एक हाँ, टैटू वो लिखा हुआ है नाम ना? बनाया हुआ है, हाँ, धनवंती। धनवंती तुम्हारा नाम था मेरा। जो जन्म का नाम था। जी, जी। और उसके बाद सबने कहा कि गुलाब। तो मैंने सोचा कि पुष्कर में गुलाब की खेती होती है। तो हमारे जयपुर में गुलाबी नगरी की गुलाब हो, तो गुलाबी। हमने तुझे कहा कि गुलाबी नाम रहेगा। जी, वैसे आपने निकाला, बना जी ने निकाला, अच्छा, गुलाबी नाम बना मेरा। जी ने, हिम्मत सिंह जी ने बोला गुलाबी, और ये जा और वो जा गुलाबी। तो जी, जैसे जी, विदेश जी, गई गुलाबी तो मशहूर हो अमेरिका गई। के बाद गुलाबो बन गई। वो तो गुलाबो बन गई। और हम लोगों ने क्या करा, हमने बहुत लड़ाई लड़ी। आपने डांटा मुझे बुला के, भाई तू धनवंती थी, तेरे बाप ने गुलाब नाम रखा, फिर तेने गुलाब से हमने गुलाबी बनाया जयपुर में लाके, अब तो गुलाबी नगर की गुलाबी हो के अमेरिका जाके वापस आने के बाद गुलाबो बन गई डायरेक्ट। और बोले ये बोला- क्या है। हम इसलिए नाराज हो रहे थे कि हरियाणा में, यूपी में एक गुलाबो डांस किया करती थी, वो नौटंकी वाले थे जी, वो लोग। जी, जी। तो हम तो नहीं चाहते थे, पर चलो कोई बात नहीं, गुलाबी गुलाबो कुछ भी हुआ। मैं लड़ाई भी लड़ी उनसे। हरियाणा वो एक मैगजीन में निकला था, तो मैंने उनसे बोला भी, मैंने कहा भाई आप ये गुलाबो नाम क्यों निकाला, मैं तो गुलाबी हूँ।
उन्होंने कहा कि देखो मैम आप अमेरिका जाके आए हो, आप इतना बड़ा नाम किया है, तो हरियाणवी में हमें गुलाबो नाम नज़दीक सा लगता है। तो फिर मैं राजस्थान में जब छपने लगी तो मैंने कहा आप तो मेरे को गुलाबो मती बोलो, आज भी लड़ रही हूँ मैं गुलाबों के लिए, गुलाबो मती बोलो। मैंने तो तो वो बराबर कहते बोला, हैं मैंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल वालों से कहा जी। कि आपकी गुलाबो होगी, मेरी मेरी तो तो गुलाबी गुलाबी है। है। अच्छा, उसके बाद यदि तुझे याद होगा फिर हमने कैसे तेरे समाज वालों के साथ कहा, मैं वो सारी स्टोरी मुझे कि बताती हूँ, लेके आओ उसको जाके। कैसे बोला कि अजमेर से जयपुर आओ। अब वो कथा बता हमको, जब तू मेरे घर आई। जब पुष्कर में मुझे डांस करते हुए देखा, और पुष्कर के बाद में जब एक रोज़ तो मैंने कर लिया, दूसरे रोज़ मैं जाने लगी तो समाज की औरतें जो मेरे साथ में थी कि तेरे को तो छुप छुप कर हम नचवा रहे थे, पहले तो डांस करना अलाउ नहीं, और फिर तेरे को तो मैडम ने पास कर लिया, अब तू तो जयपुर जाएगी। मैडम कही भी रही, मैंने कहा नहीं मैं कहाँ जाऊँगी, मैं इतनी 7 साल की बच्ची, तो डांटने लगी हमें भी लेके चलना। मेरे जो एक आदमी साथ था जो बीन बजा रहा, वो कहा कि इसको यहीं छोड़ो, आज अपनी चलते हैं मैडम के पास, वो मैडम अपने को पास कर लेगी। वो चले गए, मुझे चाय की थड़ी के नीचे मेरे भाई के साथ बिठा के चले गए। जाते ही मैम कहा कि बोला कहाँ है वो गुलाबी, कहाँ है वो जो लड़की बच्ची थी, वो कहाँ है? कि बोले मैडम वो नहीं है, बोले बीमार है तो मैं डॉक्टर की दवाई दिलाऊंगी, चली गई तो मैं वहाँ से लेके आऊँगी, नहीं तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम भागो यहाँ से। उनको भगाया तो वो मेरे पास आए, आके मुझे बोला, पता है क्या बोला? कि हमने तेरा बीमार का नाम लिया है और तू है ना चद्दर ओढ़ और यहाँ हाथ डाल बगलों में और कह देना कि मुझे बुखार है। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलती। बोला नहीं बोलेगी तो कल तेरे को कोई नचाने नहीं लेके जाएगा। मुझे नाचने का इतना शौक है ना कि मेरे को चाहिए नाचने के नाम से कुएं में फेंक दो, इतना मेरे को शौक है आज भी और पहले भी। तो मैंने कहा ठीक है, आपने मुझे देखा हाथ लगा के, तो मैंने कहा कि मुझे बुखार है। तो भाई साहब ने गवर्नमेंट की टिकिया इतनी मोटी, पहले बार डॉक्टर की दवाई दी, बोले ये खा ले अभी ठीक हो जाएगी तू। वो गोली मुझे खानी पड़ी, इतनी कड़वी थी। मैंने कहा हमने कभी खाई नहीं, तो वो खाई और उसके बाद मैंने फिर दूसरे दिन डांस किया और अच्छा लगा मुझे। और सुबह हमें बुला के आपने 50 रुपये दिए, और जो भाई तीसरे रोज जो मेरे साथ हुआ है, इतनी बड़ी सारी पंचायती बैठ गई, ये लड़की तो तख्तों पे डांस करके आ गई, और अच्छी लड़कियां तख्तों पे डांस नहीं करती है, और ये गई तो गई, लेके कौन गया इसको? बचपन से हम लोग माफ़ करते आ रहे हैं कि ठीक है पापा के साथ कर रही है, सांपों के साथ कर रही है, कोई बात नहीं, बच्ची है बच्ची, लेकिन ये तो आज डायरेक्ट तख्तों पे डांस किया है इसने हमारे। अच्छा, जब लड़कियों को जीने ही नहीं देते तो वो कहाँ मानेंगे कि वो डांस कर रही है? तो इस तरीके से मेरे को काका समाज से बाहर, मेरे पापा को समाज से बाहर कर दिया था, आपको तो पता भी नहीं, जयपुर आ गए अब तो। अच्छा, जब जयपुर में हमने बहुत मुश्किल से राजी किया कि भाई जयपुर आ जाओ। जब यहाँ जो रामबाग में बैठते थे वो हमारा कालबेलिया जो समाज के थे, उनको आपने कहा कि उसको लेके आओ गुलाबी को। जब मेरे पापा के पास वो आए थे तो मेरे पापा ने कहा कि वो मैडम जो इसको पुष्कर में देखा वो बुला रही है जयपुर, तो और वो हमें नहीं बैठने देगी, अगर हम इस लड़की को लेके नहीं गए तो हमें बैठने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि तुम गुलाबी को लेके नहीं आए यहाँ तो तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ सांप दिखाने का, रामबाग होटल में नहीं बैठोगे। तो पंचायती लगने लगी कि भाई हम पंचायती लगाएंगे, अगर गुलाबी इस लड़की को नहीं भेजा तो हम पंचायती लगाएंगे तुम्हारे से। मेरे पापा ने कहा कि अजमेर वाले मुझे समाज से बाहर कर रहे हैं, जयपुर वाले मेरे से पंचायती लगा रहे हैं, मैं क्या करूँ? लेकिन मेरी बच्ची नहीं जाएगी, वो खाली हाथ आ गए। लेकिन मैंने सुना कि मेरी परी मैम मुझे बुला रही है और उन्होंने आदमी भेजे यहाँ पे, तो मैं सुन रही थी पास में खड़ी खड़ी, और मेरे भाई को मैंने रात को कहा कि श्रवण जो था ना उनको मैंने कहा भैया वो मैम बुला रही मुझे, जो पुष्कर में मिले थे ना जो परी मैम मेरी। बोला हाँ भाई तेरी परी मैम, तो क्या करें उसका? मैंने कहा मेरे को लेके चलना है, वहाँ समाज से बाहर कर रहे हैं, तेरे को वहाँ लेके जाऊँ। मैं रोने लगी, मैं भाई की बहुत लाडली थी, वही मुझे गाने वाने सिखाते थे, चंग वगैरह सब बजाने। तो कहा के बोले ठीक है मैं लेके चलूँगा। रात की 1 बजे आए थे वैसा हम लोग। उस टाइम पे तो मैं मुंह नहीं खोल पा रही थी, क्योंकि मैं आज तक आपके सामने पहली बार वो बैठ के बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं बता नहीं पाई कैसे मुसीबत में हम आए आपके पास में। हम लोग रात की 1 बजे मेरा भाई मेरे कंधे पर उठाया और लेकर पैदल पैदल हम लोग 5-6 किलोमीटर हाईवे पर आए, और वहाँ पे आके और सुबह 6 बज गई हमारी। बस वाले को हाथ दिया और वहाँ पे हम बस वाले को बिठाया, बोला कि भाई हम लोग जयपुर जाना चाहते हैं। बस वाले ने कहा कि बोले ठीक है बैठो। बैठ गए और वो बस वाला पैसे मांगने लगा कि पैसे दो, तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है, मेरे को तो परी मैम के पास जाना है। तो वो सोचा कि लड़की पागल। फिर मेरे भाई ने कहा कि ये लड़की थोड़ी मैं जयपुर में दिखाने ले जा रहा हूँ। हाँ बोला राजा पार्क में पागल खाना, वहाँ दिखा देना है इसको, ये लड़की। मतलब
हाथ जोड़ जुड़ा के हम लोग बस स्टैंड पे तो आ गए, अब घर कहाँ ढूंढे। फिर हम लोग पूछते पूछते किसी रक्षे में बोला कि हमारे समाज के कोई डेरे हो तो बताओ। तो हमें पहले पता भी था कि पीतल फैक्ट्री पे कोई डेरे रहते हैं, हमें याद है। तो फिर हम पीतल फैक्ट्री पे आ गए। तो अब वो आपके लिए पूछने लगे, तो फिर हम लोग पैदल 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 टूरिज्म डिपार्टमेंट परी मैम, टूरिज्म डिपार्टमेंट परी मैम, ऐसे पूछते पूछते 3 मूर्ति चौराहे पे हम लोग पैदल पैदल आए। फिर वहाँ से फिर आपके घर आए हम। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी कि अभी जयपुर पहुँचे ही नहीं, और तब तक तुम्हारा नाम तो बहुत हो गया था, अखबारों में आ गया था, और पता पड़ा फिर मेरे घर तुम आई दोबारा। जी 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 वैसे और जी। एक डिब्बा लाई, अमेरिका डिब्बा जाके लाई, वापिस आ गया। एक डिब्बा लाई, डिब्बा जूते का डिब्बा था। लाल सैंडल थी और लिपस्टिक थी, उसमें काजल था और पाउडर था। तो बोले ये क्या है इसमें? मैंने कहा वैसे ये मेकअप बोलते हैं इसको। जब जब काफ़ी साल हो गए थे मेरे को, तो लड़कियों को देखते काले पीले मुंह कर रखे हैं सब, कोई लाली लगा रहे हैं, कोई आंखें लाल कर रहे हैं, पीले कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी करूँगी, पर एक दिन प्रोग्राम में लाली लगा ली। बोले ये क्या है? मैंने कहा वैसे ये लाली। बोले लाली लगाएगी तू? तेरे को मैं लाली लगाते हुए देख के लेके आई हूँ, तेरी जो ओरिजिनलिटी है ना वो ही रखना है तुझे, कभी लाली नहीं लगाना। बाई के बाद डिब्बा लेके गई, बोला आज के बाद ये सामान खरीदा तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। समझ गए ना, वो टांग से डरते मैं आज तक मेकअप लाली नहीं लगाती हूँ। उसके बाद कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, हाँ डांगी साहब वाला डांगी साहब के बाद इन्होंने तो कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। तो इसने कहा कि मैं तो कालबेलिया के अलावा ये डांस भी कर सकती हूँ, वो डांस भी कर सकती हूँ। वहां से भी आपने ही मचाया वैसा। मैंने क्या बोला और बना जी ने क्या बोला, खबरदार। हेमंत सिंह जी ने कहा खबरदार, सिवाय काले कपड़े के अलावा कोई पहन और ले तो। सपेरे का डांस के कोई दूसरा डांस नहीं करेगी। हम लोग के रामबाग होटल में जब कर रहे थे ना, तो डांस कर रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे उनका डांगी जी का एक लड़का खड़ा था। उन्होंने देखा कि एक लड़की बहुत अच्छा डांस कर रही है, बोला उसको बुला लिया यहाँ। तो हम लोग सुबह चले गए और कहा कि बोले देख तू तो कभी कभी नाचती है ना, तेरे को हम रोज़ नचाएंगे यहाँ पे, तेरे को डांस करने का शौक है? मैंने कहा हाँ, तेरे को रोज़ नचाएंगे यहाँ पे और तू हमारे यहाँ लग जाए। तो मेरे को 300 रुपये में तनख्वाह में रख लिया और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के, फोटो लगा के और टिकट लगा के साइन करवा लिए, मेरा अंगूठा लगवा लिया। जब डांसते हुए देखा, राजमाता ने देखा था, हाँ। उन्होंने फिर बना जी को उनको कहा कि वो छोरी तो वहाँ पे डांगी जी के ग्रुप में कर रही है। बना जी ने फ़ोन करके भी कहा उनको, डांगी जी को, कि डांगी जी के घर गए तो उस लड़की को बोला तू हटा दे। बोले नहीं वो तो मैं लेके आया हूँ। बना जी के बोला मैं लेके आया हूँ, भाई साहब के मैं लेके आया हूँ, वो कह मैं लेके आया हूँ। डांगी जी ने पता मुझे बुलाया, जब बोला कलेक्ट्री में मिलेंगे, पुलिस केस हो गया, बोले कलेक्ट्री में मिलेंगे। उस पर साइन कर रखा था, साइन कर रखा था कॉन्ट्रैक्ट साइन। बोला मेरा वकील बात करेगा। डांगी जी ने कहा, बना जी ने कहा मेरा भी वकील बात करेगा। उससे पहले डांगी जी ने मुझे बुलवाया कि बोला ऐसे कर बेटा, सच सच बता कि तेरे को कौन लेके आया। मैंने कहा मेरे को तो आपका नाम लिया। मैंने कहा तृप्ति जी और वो बना जी लेके आए पुष्कर से। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना कि मैं डांगी जी लेके आया मुझे। मैंने कहा मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, जो मुझे लेके आया मैं उन्हीं का नाम लूँगी। अब मुझे पता नहीं किस चीज़ की लड़ाई है, लेकिन जो लेके आया मैं उसी का नाम लूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे को सीधा कहा बोले तू खड़ी हो जाए, ऐसे बाहर निकल जा। मैंने कहा बाहर तो चली जाऊँगी। बोले तेरे को पैसे भी नहीं मिलेंगे आप। मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, मेरे को वो लोग चाहिए जो मुझे लेके आए यहाँ पे, जिनके लिए मैं यहाँ जयपुर में मैं पूरा परिवार छोड़ के मैं यहाँ हूँ, मेरे माँ बापों को छोड़ के आ गई और उनके लिए तुम झूठ बुलवा रहे हो मेरे से। उसकी कहानी का एक हिस्सा ये भी है कि 1 महीने पहले ये सारी कथा हिम्मत सिंह जी ने मुझे सुनाई जी, और कहा डांगी जी से घर जाके कहा कि एक घर तो डाकण भी छोड़ती है तो वो डाकण तो छोड़ो, घर तो छोड़। तो ये छोड़ना पड़ेगा डांगी जी आपको। तो फिर डांगी जी ने उनसे वादा किया और ये कहा कि मैं फिर ये कॉन्ट्रैक्ट से छूटता हूँ। वो दिन से छूटे, उस दिन से गुलाबी गुलाबो बन। वैसा अगर आप और बना जी मुझे नहीं छुड़वाते ना, तो आज तक मैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में रहती और रामबाग होटल की कलाकार बन के रह जाती। मैं भगवान की मर्जी है ना, सरस्वती 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 की मर्जी। देख आपका जो एक पौधा लगा है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं आपके सामने बैठ कर बातें करूंगी। आज इतने में बरोबर बैठी हूँ, कुर्सी में बैठी हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ। लिटरेचर फेस्टिवल वालों ने मुझसे कहा ना जी, तो मैंने यही कहा कि हम दोनों शायद एक दूसरे से बात ऐसे, और वो भी आप लोगों के आगे करेंगे, ये पहली बार होगा। पहली बार होगा ये मतलब पूरे मैंने आज कोई लाखों इंटरव्यू दे दिया होगा, लेकिन ये जो चीज़ है ना अपनी बातें, ये आज पहली बार हुई है और ये पहला ही है। आपको आप तेरे को सबसे बढ़िया बात ये इतनी मैं आपको बताना चाहती हूँ सब लोगों को कि ये ऐसी दुष्ट है इसकी यहाँ तो आई थी और आते इनकी मोहब्बत हो गई।
अब इनकी शादी होनी थी। शादी तो इनकी मोहब्बत हुई सपेरे परिवार से, बाहर के आदमी से। उसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है, वैसे मैं बताऊंगी आपको, मैं बताऊंगी उसकी स्टोरी। उससे पहले मैं आपको और बना जी को और सबको, मैं राजस्थान सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ मैं आप लोगों की कि मेरी तो जान बची, मेरे पापा की वजह से, और मेरी माँ ने मुझे धरती से निकाला। कि हमारे लड़कियां नहीं रखते थे पहले, उसमें आती मैं भी आती हूँ। वो लड़कियां नहीं रखते थे, जन्मते ही हमारी लड़कियां गाड़ देते हैं। और बस ये कि जो उनको औरतें चाहिए ना, वो जालोल से लेके आते हैं, मोल खरीद के लाते हैं लड़कियां, उनको घर में पालते पोसते हैं, फिर उनसे शादी करते हैं। ये हमारे सदियों से रिवाज था, क्योंकि जंगल में रहते हैं, बाहर की मांग के खाते हैं, सांपों को नचाने का काम है। लड़कियाँ नहीं नाचती थी हमारे, लड़कियां रखते ही नहीं थे। वो कहते कि लड़की रखेंगे तो इनकी शादी करनी पड़ेगी, इनको सामान भी देना पड़ता है, कपड़े भी पहनाने पड़ते हैं, तो वो लड़कियां नहीं रखते थे। तो इस चक्कर से लड़कियां जो भी होती गाड़ देते। मेरे को पता है, मेरे को गाड़ दिया था। तो धनतेरस के दिन मेरा जन्म हुआ और जन्मते ही मुझे गाड़ा। मेरे पापा उस वक्त थे नहीं, हाँ, तो पापा थे नहीं घर पे, वो तो सामान लेने चले गए थे दीपावली का। और जिसने मुझे जन्माया वही औरतों ने ले जाके मुझे ज़मीन में गाड़ दी है। उसके बाद जब मेरी माँ को पता चला कि मेरी लड़की हुई है, उसको गाड़ दिया है, तो मेरी माँ रो रो के मुझसे भीख मांगती रही कि मेरी बच्ची की जगह बता दो, कहाँ गाड़ा है, मैं निकाल के लेके आऊँगी। लेकिन वो औरतें बताई नहीं। वैसा वो मेरी मौसी को पता था कि मुझे कहाँ गाड़ा है। मेरी मौसी और मेरी माँ जाके बोला अभी तो नहीं, रात को लेके आएंगे, अगर वो जिंदा मिल गई। मेरी माँ कहती, मेरी आत्मा कहती वो ज़रूर मिलेगी। तो रात की 7 बजे में हुई थी, 7 बजे मुझे गाड़ा और रात की 12 बजे मेरी माँ और मेरी मौसी उस धरती से जमीन के पेट में मुझे गाल दिया, दबा दिया। बिल से सपेरन को निकाल के लाए। ओ ये देख लो, खोदा मुझे, और मेरी सांसें चल रही थी, और वहाँ से मेरी माँ और मेरी मौसी मुझे वापस निकाल के लेके आई। तो बस ये कि मेरी माँ के 9 महीने पेट में रही, धरती माता के पेट में 5 घंटे रही। तो मेरी माता धरती भी है और मेरी माता भी है। तो और आप तो मेरे लाइफ दाता है ही। तो जब अमेरिका जाके मैं वापस आई थी ना, वैसा 5 साल तो मुझे खूब लोगों ने इतना कि ये लड़की हमारी नहीं है, वो नहीं है, ये तो हमारे समाज पे कलंक है, ये हमारी लड़कियां नहीं नाचती है। जब मैं अमेरिका जाके वापस आई, जब जाने से 1 रोज़ पहले मेरे पापा गुजर गए थे, फिर मुझे बताया गया वापस ला के, और फिर रात की आपके पास में कोई आदमी आया और आपको कहा कि गुलाबी के पापा नहीं रहे, गुजर गए। आप और बना जी गाड़ी लेकर आए, मेरे को हिम्मत बंधाई आपने कि हम है ना सब कुछ। तो उस चीज़ को बोला, पापा गए ठीक है, हम जगह नहीं लेंगे उनकी, लेकिन तू हमारे लिए आई है ना। तो वैसा वो बात मेरे दिमाग में, आपने मेरे को इतना हौसला बढ़ाया। और उसी रोज़ मैं सुबह 5 बजे वाली बस पकड़ के फिर मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली जाने के बाद वापस आपने पहले बार अखबार में छपवाया मेरा, पहले बार मेरी फ़ोटो छपी। और उसके बाद में वापस आने के बाद समाज वालों ने क्या कहा कि बेटा आप हमारे लिए एक मिसाल हो। हम आपको ऐसे ही कहते थे, लेकिन आज आपकी वजह से हमारे समाज का नाम हुआ। मैंने कहा मेरी वजह से नहीं हुआ, मैंने आपका बना जी का नाम लिया, मैंने कहा उनकी वजह से हुआ। अगर वो नहीं होती तो आज ये समाज ही नहीं होता। क्योंकि मेरे को वहाँ जब पूछा है अमेरिका में कि इस डांस का नाम क्या, मैंने कहा कि मैं चाहती तो ये भी कह सकती थी गुलाबो डांस से, लेकिन मैंने कहा कि मेरे समाज का कहीं नाम पता ही नहीं है। तो मैंने ये कहा कि मेरे डांस का नाम आप सपेरा डांस, मैं सांप की जगह डांस कर रही हूँ बीन बजा के, तो मेरे डांस का नाम सपेरा है, मैं सपेरा डांस इसको बोलूँगी। सरनेम ही वहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सरनेम हमारा लगता ही नहीं था। तो मेरा नाम गुलाबी नाथ लिखा हुआ है, जो गए थे मेवा नाथ, महादेव नाथ। मैंने कहा मर्दों का नाम हमारे क्यों लगा दिया भाई। मैंने कहा हमारे सरनेम सपेरा लगाओ, मैं सांप की जगह डांस करती हूँ तो सपेरा लगाओ। उसके बाद आने के बाद मुझे समाज वाले लोगों ने, पापा नहीं रहे वहाँ पे, राजीव गांधी जी मिले मुझे, उन्होंने मेरे को बहन बनाया, राखी बांधी। जब उनको पता चला आने के बाद, समाज वालों ने क्या कहा कि बोले गुलाबो तुम हमारे लिए स्पेशल हो बेटा, आज से आप हमारे समाज की अध्यक्ष हो। वो तो मैंने सब मान लिया। पहले और बताओ प्यार का चक्कर बाद में बताऊंगी। उसके बाद पता क्या किया, समाज वालों ने मुझे अध्यक्ष बनाया। फिर कहा कि बोले बेटा हमारी बेटियों को भी डांस सिखाओ, हमारी बेटियों को डांस सिखाओ। मैंने कहा आप बेटियां बचाते कहाँ हो, बेटियों को तो सबको मार देते हो, बेटी होएगी तब डांस सीखेगी ना आपके पास। तब कहा कि आज के बाद हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे, हमारे घर में भी गुलाबी चाहिए, हमारे घर में भी गुलाब चाहिए और गुलाबो चाहिए। तो उस रोज़ के बाद अमेरिका जाके वापस आने के बाद ये आपकी मेहनत,
बना जी की मेहनत और आपकी ये ट्राई और आपका ये पौधा इतना खिला है कि आज हमारी बेटियों की जान बची। नहीं, वो मुझे आज एक एक घर में 10-10 बेटियां हैं, 15-15 बेटियां, 5-5 बेटियां, 6-6 बेटियां, वो आज घर है, मुझे अच्छा लगता है। घर निमारी, ससुराल का भी पियर का भी। देख अच्छा क्या लगता है कि पहले सपेरे लोग आते थे और उनकी लड़कियां नजर नहीं आती थी, है ना? होती नहीं थी तो अच्छा, नजर कहाँ से और आएगी? जब से कालबेलिया लड़कियां आने लग गई, सपेरे ने आने लग गई, तो अब पाँव पे तब से ये हो गया कि ढपली वाला साथ में कौन आएगा, बीन वाला कौन आएगा। और हम लोग आज भी ये चाहते हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारे आदमी लोग ही जी। ढपली बजाएं और वो बीन बजाएं, क्योंकि यदि तुम लोग और इंस्ट्रूमेंट लगाओगे वैसे तो ये विरासत आपकी खड़ी करी हुई है, तो आपकी विरासत को तो आप बचा रहे हो ना, हर बार आप बचा रहे हो। मेकअप अलाउ नहीं, दूसरे कपड़े पहनने में। अमेरिका से वापस आई तो मैं मिंडी आप मेरे टॉप पहन के आप आई चली थी, गई। वैसे वाले जूते तुम मिडी पहन के आई थी और तुमने मुझसे पूछा था आपके पास मोबिल है क्या? तो मेरे को नहीं पता था कि मोबिल क्या होता है, तो मैंने कहा मोबिल क्या है, तो तुमने निकाला वो सेल फोन हाथ में और मैंने कहा गुलाबी के हाथ में आ गया तो अब तो मुझे खरीदना पड़ेगा, नहीं तो बात कैसे करूंगी। पर वो तूने मोबाइल खरीदा था, वो प्यार जो हुआ था, वो प्यार वाली बात तो वैसे मैं बताती हूँ ना आपको, वहीं तो आ रही है मैं कि समाज के लोग है ना, वो मान गए थे कि हाँ ठीक है हमारी लड़की ने काम किया, अच्छा किया, पर उनको कहीं न कहीं जलेसी थी, इस चीज़ की जलेसी थी कि ये लड़की अजमेर की है, जयपुर आके इसने नाम किया, और हमारे कालबेलियों के ऊपर ये अध्यक्ष भी बन गई, ये छा गई और आज ये डांस में हम लोगों को मना लिया है। हमारे पंच लोगों की ये थी 420 हमारे साथ के बचपन से 81 से जैसे मेरे को भाई साहब लेके आए, तो जो मेरे साहब हैं वो आरा मशीन में नौकरी करते थे और वो कलाकार है, वो शुरू से कलाकार है और वो खाती है, जांगीड़ी ब्राह्मण है, तो वो हमारे ग्रुप में आना स्टार्ट कर दिया था, तो वो ढोलक बजाते थे पहले से। तो समाज वालों ने कहा कि ऐसे तो ये लड़की मानेगी नहीं, इसको कैसे न कैसे करके यहाँ से भगाना है, इसको बदनाम करना है। तो हमारे साहब को कहा कि तेरे को तू जोगी बन जा, उसको समाज में हमारे समाज में ले लिया, कालबेलिया बना लिया। कालबेलिया बनना वो बन गए थे 83 में बन गए थे। उसके बाद मेरे पापा को कहा कि ये लड़का है, इसको संभाल लेगा और इसके साथ आप इसकी सगाई कर दो। मेरे पापा ने कहा कि नहीं, पराई समाज का मैं इसको नहीं दूंगा। तो बोले साथ भी तो रह रहा है, बोले साथ रह रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं इसके साथ शादी कर दूँ। बोले ये साथ कलाकार है, कलाकार तो बहुत सारे मिलते हैं। तो हमारी बहुत बड़ी पंचायती बैठी थी वैसा। बनाजी पंचायत में गए, बनाजी आए, हिम्मत सिंह जी आए, वो आके उन्होंने यही कहा कि आप इस बच्ची को गलत फंसा रहे हो, ये पराये समाज में जाएगी नहीं, ये बच्ची है छोटी है, इसका भी शादी ब्याह ये सोचना गलत बात है, तो आप ये शादी ब्याह के चक्कर में मत डालो इसको। भाई साहब ने मुझे बहुत डांटा कि तू ब्याह कर रही है, मार खाएगी, तेरे को आगे बढ़ना है, अभी कोई शादी वादी नहीं करना। मगर वैसे समाज के आज राखी हम यही बातें कर रहे थे कि तेरे को भाई साहब ने मना किया था, तृप्ति जी ने मना किया था कि शादी मत करो, तो आपने क्यों किया? मेरे को नहीं करती तो फिर आप कहाँ से होते बेटे? अच्छा, तो ये बातें हो रही थी। उसके ऊपर से वो जो शादी की वो तो की, और वो जो छुड़वाया वो आरा मशीन वाले से, तो वो वही तो कह रही हूँ मैं। तो मेरे को बिठा दिया, बान बिठा दिया कि ठीक है, डोरडे बंध गए हमारे। ये बातें कभी किसी के सामने नहीं हुई, आज पहली बार मैं बात कर रही हूँ, ये कभी किसी के सामने नहीं हुई, आज पहली बार भाई साहब ने पूछा, मैं बता रही हूँ। डोरडा बांधा मेरे, हमारे साहब वहाँ से गायब, कि बोला मैं जाके आ रहा हूँ कैंप पे। तो हमारे क्या बींदनी को मिलने नहीं देते, दूर दूर रखते, एक वो दूर झोपड़ी में, हम दूसरी झोपड़ी में। वैसे तो हम कलाकार थे, तो मैं तो छोटी थी, मैं 7 साल की थी जब वो मिले थे, मैं 22 साल लेके आए थे, मैं 7 साल की थी। जब से वो मुझे साइकिल पर आगे बिठा के ले जाया करते थे, उनके हाथों में मैं बड़ी होगी 12-13 साल की। मेरे पहले बार घाघरे का कमीज का और घाघरे का टुकड़ा वो खुद लेके आए थे, घाघरा और कमीज का कपड़ा, और उन्होंने अपने साइज से बनवाया था। समाज वालों ने ये सोचा कि इनके लव स्टोरी है, तो मेरे को जब उनको पूछा ना कि तेरी शादी हम गुलाबी के साथ करेंगे, उन्होंने साफ मना किया कि मैं गुलाबी के साथ नहीं कर सकता। मैंने बच्ची की नज़र से देखा, वो छोटी कितनी है, मैं 25 साल का हूँ, वो 7 साल की, ये बच्ची के साथ मेरी शादी कैसे होगी? तो हमारे समाज वालों ने कहा कि तेरे को शादी तो करनी पड़ेगी इसके साथ, क्योंकि अब तेरा बदनाम हो गया तू, कि तू ही घूमता है इसी के साथ। अब वो बेचारा साइकिल में बिठा के मेरे को कभी प्रोग्राम में ले जाता है, कभी भजनों में ले जाते हैं। तो इस तरीके से उल्टे फंस गए तो डोरडे बंध गए मेरे, बान बिठा दिया, हल्दी लग गई और हमारे साहब गायब। साहब गायब, ये किस्सा
और साहब गायब। एक दिन हो गया भाई, पीठी का टाइम हो गया, बींद नहीं आया, ढूंढ रहे हैं उनको। मैं वहाँ से चली, महिला हुई थी मेरी शादी, वहाँ से मैं चली और भाई साहब के पास आ गई। मेरे को भाई साहब मेरे को डांटी, बोला आ गई बींदनी बगैर शादी की, क्या है कहाँ से आई तू? मैं आके रोने लगी। मैंने कहा मेरा बींद तो भाग गया। मेरे फिल्म के लिए बचा रखी थी स्टोरी, आज आपने निकाल ली मेरी स्टोरी। उसके बाद बनाजी आरा मशीन से कैसे छुड़वा के लाए? तो मैं भाई साहब के पास बैठी, बोला तू बैठ जा, बनाजी जा रहे हैं। बनाजी चले गए वाराणसी वाला के पास में। काके बोला वो हमारा बींद राजा कहाँ है भाई? बोले नहीं वो नहीं आएगा, वो हमारा है, वो वहाँ कहाँ जाएगा कालबेलिया में? कि भाई वो तो जोगी बन गया है, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है उसके पास में, तो उसको कालबेलिया बनाया हमने। बोला नहीं मैं नहीं दूंगा। बनाजी का या तो तू उस लड़के को निकाल, नहीं तो मैं तेरे ये जारा मशीन बंद करवा दूंगा। 2 दिन मेरे 9 दिन के बांध थे, 2 दिन हल्दी चढ़ी, 2 दिन बनाजी यहाँ, हमारे साहब यहाँ रहे आरा मशीन में छुपे हुए। और उसके बाद बनाजी उसके पकड़े कान और लेके आए और कहा के बोले ये, अब बोले चुपचाप शादी कर लेना, नहीं तो तेरी टांग तोड़ दूंगा, मेरी छोरी की बदनाम करेगा। तो इस तरीके से हमारी शादी, अगर बनाजी नहीं होती तो शादी भी नहीं होती। ये देख लो, भाग गया था ये आदमी। तो बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा के कहाँ से ला लू के। और फिर उसके बाद कट टू में आप लंदन आती हैं, बताती नहीं कि आपके राखी होने वाली है और हम लोग लंदन का प्रोग्राम कर रहे हैं। इन्होंने बताया नहीं कि इनके तो घर में मेहमान आने वाला है। अब हम भी अनाड़ी खिलाड़ी, हमें भी नहीं पता। अबे फिर कुछ खट्टा मांगे, कुछ ज़्यादा खाने को मांगे। तो आपके मोमा जी की लड़के की शादी हुई थी, तो वो वहाँ बैठे थे, तो आपस में बात कर रही थी, तो वो उन्हीं के घर में रुके हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे अभी 3 महीने हैं, तो हम मेवाड़ हम बैठे थे उनके पास में। तो बोले मेरी शादी जनवरी में हुई। तो वो जो मेवा बोली कि शादी जनवरी में हुई, तो बोले गुलाबी तेरी शादी भी तो जनवरी में हुई थी। बोले तेरे क्या हाल है? मुझे क्या, मेरे क्या हो सकता है, मैं छोटी 14 साल की, मेरे को क्या पता मेरे क्या हाल हो सकता है। अब वो बातें हम तो आपस में बतला रहे थे, वो बात भाई साहब तक पहुंच गई कि भाई ये तो खट्टा खाने वाली है हमारी गुलाबी। तो फिर जो आई मेरे पास, इधर आते रहो खट्टा खेलो, मेरे पास आ, क्या शादी कर ली कोई बात नहीं, पर तू यहाँ तक पहुँच गई। में एल्बर्ट हॉल में प्रोग्राम, और इन्होंने बताया नहीं कि इनके घर में मेहमान आने उसके बाद बोला कि बोला अब चल तू चुपचाप डॉक्टर के नहीं गुलाबी। और मज़ेदार बात, हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोग सब लोग एक दिन रसोई संभालेंगे, किचन में कुक करेंगे खाना, और सब खाएंगे। पर जिस दिन कालबेलियों ने बनाना शुरू किया, उस दिन सारे लंगे मांगने सब नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा हम इनके हाथ का नहीं खाएंगे, हम कालबेलियों ने का हाथ का नहीं खाएंगे, हम इनके हाथ का नहीं खाएंगे, छोटी जाति के। तो मैंने फिर उलट के कहा, मैंने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ, आप तो मुस्लिम हैं, फिर आपको क्या दिक्कत है? वरना जी कि मैं राजपूत तो ठिकाने वाला, बोले मैं खा रहा हूँ, तुम्हारे को क्या हो रहा है? बोला ये हम लोगों ने बनाया और इन सब ने खाया लाइन लगा के। और दूसरे दिन हमने सबने तय किया कि कालबेलिया बनाएंगे और सारे लंगे मांगने यार पहले खाना खाएंगे। तो एक तरह से वो सब बस दौर था। आपका इतना सीन है मेरी स्टोरी में, मतलब पूरी स्टोरी आप ही की है, देख लो आप नहीं होते। अच्छा चल स्टोरी ठीक है। अब 1-2 गाने, ये गाती भी है नाचती भी है। पहले तो अपन यहाँ से गाना शुरू करेंगे, नचाएंगे तो जरा अपन थोड़ा सा खड़े होंगे तब नाचेंगे, है ना? तो गाना कौन सा गाना गाऊँ बताओ आप? बेटी मारी सोने की बिनेरी वो गाऊंगी। बेटी मारी हाँ ठीक है, वो गा देती हूँ। और फिर मैं थोड़ा सा एक बोल मेरे फेवरेट गाना है, जिसको 7 स्टार गोल्ड मिले हुए हैं, वो गाऊंगी फिर मैं। और फिर मैं जो है इंटरनेशनल वो तो मैं गाती हूँ। आशीर्वाद दीजिए। बेटी मारी सोनारी होती रे, बेटी मारी चांदी री होती रे, बेटी मारी चांदी री होती रे, बेटी मारी सोनारी होती रे, बाल के बनड़ी रा बना ओ मुखी से बोलो तो सरी रे, कैया बोलू वे बनी ओ मुख में पान री बीड़ी, ओ कैया बोलू वे बनी ओ मुख में पान री बीड़ी।
ओ बिटी मारी जयपुरी ये जाती रे बिटी मारी पुष्कर में आती, ओ बिटी मारी जयपुरी ये जाती रे बिटी मारी पुष्कर में आती, रे बाल के बनडीरा बना ओ मुख से बोलो तो सरी, ओ कैया बोलू वे बनी ओ मुख में पानरी बीड़ी, ओ कैया बोलू वे बनी मुख में पानरी बीड़ी। और ये तो हमारे ट्रेडिशनल कालबेलिया का गाना हुआ। कितने दिन बाद गाया है? बहुत दिन हो गए वैसे गाए हुए गाना। मैंने यही सोचा है कि जो हम बातें करेंगे भूल ही गए इस गाने को तो लोग, आज आपने याद दिला दिया वापस। बस। और अब एक वादा और है कि कभी भी डांस करेगी तो ढपली वाला होगा जी वैसे और सपेरे होंगे जो बीन बजाएंगे, वरना लोग बीन बजाना भूल जाएंगे, सही है। ढपली बजाना एक भूल मेरा ही ऐसा ग्रुप जाता है जिसमें बीन बजाने वाला आता है और ये ढपली देख वाला लो। भी आएगा। ढपली वाला भी आता मैं है तो थाली ढपली बजा दूंगी मैं। ठीक है। अच्छा, अब एक गाना और, सुन ले। 7 स्टार 7 स्टार। देख पुंदिले ने झूरे नी रे बवर सन झूरे नी रे पुंदिले री माताड़ी रे बवर सरी माताड़ी, देख पुंदिले री आवे नी रे बवर सरी आवे नी रे पुंदिले री ओळूडी रे बवर सरी ओळूडी। और अब तो चक्कर काट के दिखाना है, गुलाबी के टेढ़े वाले चक्कर और सुलटे चक्कर और उल्टे चक्कर, जो बाकी कालबेलिया नहीं खा सकती। सही है, वैसा मेरे तेरी को पता बेटी है। भी नहीं खा सकती। कोई लड़की एक बेल्जियम की है जो वो आपसे जिद करी कि ये डांस तो डांस होता है, पर कहा कि नहीं ये मेरी गुलाबी का ही डांस है, और वो ही करती है। तो वो कहते हैं बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी का डांस हो सकता है। बस अब एक बार मैं चक्करी खा के बताती हूँ। हमको आपको चक्कर कटा के दिखाना है जी जो गुलाबी का चक्कर है, जी। चक्कर ही चक्कर। As you're aware, the cultural sector has been critically impacted by the pandemic, and while we have braced ourselves to embrace the new normal, we've struggled to ensure that we can continue to bring you a free flow of knowledge and ideas. We would love for you to support us at Teamwork Arts. Any contribution is welcome and would help spread knowledge and ideas seamlessly against all odds. Please tweet using Jaipur Literature Festival 2021 at Jaipur Lit Fest. The festival is protected by Dettol.